Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I, Dr. Anam Abbas, physiotherapist at Noor International University, welcome you to another live session, Treat the Reason, Not the Pain. And today we have very distinguished guest speaker with us, Dr. Maryam Shabir. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. I'm fine. Thank you so much for making me an honorable guest for you. Thank you so much for giving us the opportunity and taking us the time for us. But before heading on to the session, we cut over to what NIU is about, कौन से programs हम offer कर रहे हैं. So उसके लिए there is a short video. So over to the IT department. Welcome back, Ji, and thank you for joining us. So we have a very distinguished guest, Dr. Maryam Shabir. She is currently the principal at Allied Health Sciences, Avicenna Medical College. She had experience of working in the Rifa International University, CMH Medical College, and many more. ये मैंने अब आपको बता दिया. Let's hear about her journey in her own words. So, Dr. Maryam, kindly share about your journey with our audience. Ma'am, kindly unmute your mic. Oh, sorry. I'm Yes. really sorry. Okay, No Assalamu problem. alaikum. I'm Dr. Maryam. I actually graduated from University of Health Sciences from Children's Hospital in 2008. Afterwards, we were the first batch who has got the opportunity at that time. After completing my house job, I have just joined that LMDC, Lahore Medical and Dental College, in 2009 January. From there, my journey as a clinician started. I completed my post-graduation during that period. It was being 2 years that I was working in LMDC and studying there at Rifa International University, Islamabad campus. From there, I got an opportunity to went to Saudi Arabia in University of Hail. I have been there for 2 years from 11 till 2012. I was working there as a lecturer. Then I came back to Lahore and I joined Rifa as a senior lecturer in 2012. It was almost the end of that year. And from that time till 2018, I was working there and I was promoted as assistant professor. And I moved to CMH for the whole year. I was there in CMH, going through the process of affiliation of CMH Medical College for the DPT program. Then I rejoined Rifa and now currently I'm working as the principal of Allied Health Sciences, Avicenna Medical and Dental College. So it was a little introduction of me. I'm currently a PhD scholar as well. There are a lot of publications which are at my credit. Almost 36 are there. Mashallah, very My PhD nice. is approximately. Thank you so much. It's almost done. It's a great opportunity for me to be the part of this platform, and I thank you for all the faculty and all the people who's working so well for all of us, and giving me an opportunity to speak about something that is regarding physical therapy. Thank you so much. Thank you so much for taking us the time for us. Okay, ma'am, you have such an inspiring and a long journey of the physiotherapy. So we start our formal session.
जिस तरह हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द का बहुत प्रॉब्लम है, एंड द पीपल इन आवर सोसाइटी नीड इंस्टेंट रिलीफ, फ़ौरन से आराम चाहिए. सो डू यू थिंक दैट देयर इज मिसकंसेप्शन अबाउट द मस्कुलर पेन एंड इट्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? Yes, as far as the population is concerned and the people who are suffering from the musculoskeletal issues, they think that they must have to go to the doctor, take the medicine, and they can get rid of it. But actually, as far as we as a physical therapists are concerned, we know that first line of action or first line of treatment for the musculoskeletal treatments is not the medicine. अगर आप just medicine लेते हैं, आपको instant relief जरूर मिलता है, but इफ यू नो कि मस्कुलोस्केलेटल की डिफरेंट कॉजेज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम फीमेल्स को देखते हैं, उनको फॉरवर्ड नेक पोस्चर है. अब उनको अगर शोल्डर्स में पेन है, नेक में पेन है, वो टैबलेट लेते हैं. फॉर एग्जांपल दे गो फॉर द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वो लेते हैं, उसके बाद दे गेट एन इंस्टेंट रिलीफ. लेकिन इट विल कम बैक बिकॉज द एक्चुअल कॉज इज स्टिल देयर. हाँ, जब तक आप उसको प्रॉपर असेस नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं कि किस रीजन की वजह से उसको वो पेन है. फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल फटीग की वजह से था, आपने अगर मेडिसिन लिया, रेस्ट किया, इट्स ओके, इट विल बी गॉन. बट इट इज बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर और द पुअर पोस्चर, तो वो आपकी मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकता. सो फॉर द जनरल पॉपुलेशन इट्स ट्रू के दे डोंट नो कि टू वेयर दे मस्ट गो, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. But being a therapist, we almost all of us knows कि हमें क्या line of action रखना चाहिए, कैसे हमें assessment करनी है, and how do we have to treat that patients. So for me, देखें, जैसे हम बात करते हैं ना, medicine में भी there are different types of practices now. There is holistic medicine, there is alternative medicine. So particularly when we talk about alternative medicine, so they go for the cause. They said that कि आप पहले उसका कॉज निकालें, फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंडीशन, एंड देन गो फॉर द ट्रीटमेंट. जबकि हमारे बहरहाल होलिस्टिक वालों का भी यही कंसेप्ट है कि आप पूरा पेशेंट एज ए होल ट्रीट करें. वो तो खैर उनकी तो बहुत ही लंबी एक साइंस है ना. देयर इज अनदर साइंस दैट इज लाइफ एंड लिविंग. ये जो आप लाइफ एंड लिविंग की बात करते हैं, उसमें दे सेड दैट यू मस्ट बी प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी. आप प्रिकॉशंस पहले करें, ठीक है. आप अब फिजिकल थेरेपी को भी अगर आप देखें तो 80% हमारी जो ट्रीटमेंट चलती है दैट इज पिलिएटिव केयर, कि आप पिलिएटिवली या आप क्यूरेटिव पेशेंट को यानी कि लेके जा रहे हैं, कि आप उनको पहले बताते हैं कि आपने प्रिकॉशंस करनी है. अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट तो दे दें बट आप उसको प्रिकॉशंस ना बताएं, फॉर एग्जाम्पल, तो आपका पेशेंट कैन नॉट गेट बेटर. विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अर्सा वो ठीक रहेगा, देन अगेन इट विल गेट बैक टू यू कि जी मेरा तो पेन दोबारा से बढ़ गया. क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से उसको पेन इंक्रीज हो रहा है, आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू नो व्हाट इज द रीजन. Yes, very well said, मैम. आपने एक बताया कि वन ऑफ द रीज़न इज़ द फॉरवर्ड हेड पोस्चर. आप काइंडली हमारी ऑडियंस को बताएं कि और डिफरेंट मस्कुलर कॉजेज़ क्या हो सकती हैं पेन की, और डिफरेंट क्या वजूहत बन सकती हैं जिसके लिए बिफोर हेडिंग ऑन टू द मेडिकेशंस उनको पहले थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. ओके, अच्छा देखें, हमारे पास देयर आर सो मेनी रीजंस. जैसे मैंने अभी बात की कि हम टीनेजर्स में देखें या हम अपनी एज, फॉर एग्जांपल मिडिल एज में आप आते हैं, 30s एंड 30+ में आते हैं, जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है दैट इज योर बॉडी मैकेनिक्स. आप पुअर बॉडी मैकेनिक्स के साथ होते हैं, आपके शोल्डर्स ड्रॉप्ड हैं. आप अगर फॉर एग्जांपल टीनेजर हैं या स्कूल गोइंग हैं, तो आप जो बैक पैक्स ले रहे होते हैं वो उसके वेट की वजह से आपका बॉडी पोस्चर जो है वो खराब होता है, जो आपको लेटर जो है वो पेन कॉज करता है. देयर इज अनदर रीजन. अब देखें, जो नॉर्मल या जो एविडेंस है, एविडेंस इज के जो आपका डिप्रेशन है, जो आपके जो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, दे कैन आल्सो कॉज द सोमैटिक सिम्टम्स. वो आपको सोमैटिक सिम्टम्स देना शुरू हो जाते हैं, आपको आपकी बॉडी में पेन्स आते हैं. फिर देर आर सर्टन अदर रीजंस. फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं गोल्फर्स एल्बो हो जाता है, आपको टेंडनाइटिस होते हैं डिफरेंट टाइप के. अब शोल्डर की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो शोल्डर में हमारे पास ये जो हमारे जो एसी जॉइंट है, फॉर एग्जांपल, हम जब भी शोल्डर ट्रीट कर रहे होते हैं, शोल्डर पेन के साथ आता है पेशेंट, डॉक्टर्स ने बड़ा बड़ा लिखा होता है जी फ्रोजन शोल्डर, दैट्स इट. दे डोंट नो
वेदर के ये आपका कौन सी कॉज हो सकती है इसकी? हाँ, व्हाट कुड बी द कॉज, आपको बर्साइटिस हो सकता है, आपको यस। टेंडिनाइटिस हो सकता है, आपको एसी जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जो एसी जॉइंट फॉर एग्जांपल देखें, देयर आर सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है जी मुझे टिप ऑफ शोल्डर में पेन है, यस। आपने उसकी ड्यूटी बना ली, रूल आउट कर लिया, लेकिन आपने उसको सिर्फ शोल्डर पे फॉर एग्जांपल मोबिलाइजेशंस करा दिया आपने ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, एंड यू डिड नॉट लुक फॉर द एससी जॉइंट एंड फॉर द एसी जॉइंट, दैट इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट वी नो दैट इट्स अ वेरी लिटिल जॉइंट, लेकिन अगर आपने उसको फाइंड आउट कर लिया कि इट्स एसी जॉइंट, तो यू कैन ट्रीट दैट पेशेंट इन 3 days। आप 3 दिन के सेशन के बाद आप उसको मोबिलाइज करें, उसको स्लाइड स्ट्रेंथनिंग करें, तो आप अपने पेशेंट को परफेक्टली ऑल राइट कर सकते हैं with यस। the treatment of these 3 days। अब अगर आपका पोस्चरल रीजन है तो जाहिर है आपने उसकी एर्गोनॉमिक्स बेटर करनी है। हमें हमारा पूरा, अब डेफिनेटली। तो फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं दे आर वेरी गुड इन इट, उनके पास फुल एर्गोनॉमिकल नॉलेज है, दे आर इक्विप्ड विद इट। हमें पता है कि हमने कंप्यूटर पे बैठना है फॉर एग्जांपल, तो हाउ डू वी हैव टू सिट देयर एंड हाउ डू वी हैव टू वर्क ऑन द कंप्यूटर्स। पहले तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता था। देखें NTRSI हमारे पास वो अवेलेबल है जो हमारे कीबोर्ड्स हैं, सो दैट जी। कि आप अपना जो है हर चीज को प्रॉपर रखें, सो दैट यू कैन ट्रीट योर पेन और यू कैन अवॉइड इट। हमारे पास 80% यस। ऑफ द केसेस में अगर हम अपनी पेन को या अपने प्रॉब्लम को अवॉइड कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे हम आर्थराइटिस की बात करते हैं, अब आर्थराइटिस इज समथिंग, आप देखें पेशेंट्स आर्थराइटिस के साथ होते हैं, बट दे गो टू द डॉक्टर, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनसेड्स उनको दे देते हैं, ठीक है। अब अगर तो आप सिर्फ उससे सिर्फ ये होता है कि फॉर द टाइम बीइंग दे गेट रिलीव। अब यस। एक्चुअली तो उनकी एग्जैक्टली। पूरी बॉडी मैकेनिक्स आपने सेटल करनी है। आपने फॉर एग्जांपल उनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप उनको अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, आप उनको नहीं बताएंगे कि आपने कमोड यूज करना है, आपने जमीन पे नहीं बैठना, आपने नमाज कैसे पढ़नी है, तो आप उस यस। पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते। आर्थराइटिस इज समथिंग वी नो दैट वी कैन नॉट रिवर्ट इट बैक, बट वी कैन स्लो इट डाउन, राइट। हम बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमें पता है कि जब तक हम अपने पेशेंट को वो सारी होम रेमेडीज नहीं बताते, हमारा पेशेंट ऑलवेज ऑलवेज कम बैक टू अस with again or with the remission of that disease। फॉर एग्जांपल जैसे प्री फॉर्मिस की हम बात करते हैं, प्री फॉर्मिस यस। सिंड्रोम इज वेरी कॉमन। हम बैक एक की जब बात करते हैं कॉमन। तो बैक एक में there are so many reasons। for example there could be stenosis, there could be this preformis is very common। आप यस। देखें अगर स्टीनोसिस के साथ हो पेशेंट तो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, अगर वो मस्कुलर है तो वो डिफरेंट होता है। अब जैसे हम प्रीफॉर्मिस की बात कर लें, प्रीफॉर्मिस में अगर आप पेशेंट को ये नहीं बताएंगे कि आपने कंफर्टेबल कैसे रहना है एट योर होम, आपने सख्त जगह पे नहीं बैठना, आपने कमोड यूज करना है, तो आपके पास पेशेंट रिकरेंट इंजरी या रिकरेंट पेन के साथ बार बार आ रहा है ना। दोबारा दोबारा वो तो हमारे पास हमें आता है। yes, exactly, starting from the headache till your heel pain, we as a physical therapist हम हर चीज जो है उसको डील कर सकते हैं। आपको अगर हेडेक है तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। इफ इट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक तो हम उसको, आपकी जो पेन है, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट वी कैन ट्रीट दैट। आपका नेक है, शोल्डर है, फाइब्रोमाइल्जिया, वी नो दैट फाइब्रो, अब देखें फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में इतनी सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं। यस। डॉक्टर के पास जाएं, they'll give you NSAIDs, राइट, वो आपको NSAIDs दे देंगे, बट वी नो एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट कि द मेन कॉज, द रूट कॉज इज द स्ट्रेस फॉर द फाइब्रोमाइल्जिया। यस। आपने वो फिगर आउट करना है कि which is the reason, which is the stress point of that person। For example, I have treated a patient, she was very young, rather she was only 26-27 years, newlywed। She comes to me that I'm having pain here. I checked that trigger points, it was positive for her। I just asked her, she came to me with her husband actually। I sent her husband outside and asked her actually what is going on with you, क्या क्या मसला है आपको। तो she said कि जी मेरे husband मुझे ये कहते हैं, मैं the way you know हमारा जो एक social setup होता है, यस। she told me the whole story actually। Then I sent her back to her husband and I talked to her husband in alone, और फिर मैंने उनको समझाया कि ये कैसे यू कैन डील योर वाइफ, कि अभी आप न्यूली वेड हैं, अभी से आप इतने स्ट्रेस में हैं, तो आप अपनी वाइफ को लेकर फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स के पास फिर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम यू नीड टू एंजॉय रादर टू गो टू द डॉक्टर्स। अच्छा जी, कुछ देर लाइक इट बीइंग, इसके बाद वो शी नेवर कम्स टू मी। उसका हस्बैंड आफ्टर 3-4 months वो मुझे मेरे पास आया एंड ही सेड के मेरी बेगम को तो अभी कोई मसला ही नहीं होता,
तो मैंने कहा आपने क्या रेमेडी, आई जस्ट टोल्ड हिम कि कीप हर हैप्पी, शी विल बी फाइन, इसको कोई मेडिसिन कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड इट वर्क सो वंडरफुली कि ही केम टू मी जस्ट टू टेल मी कि आपने मुझे बहुत अच्छा टिप दिया था, शी इज वर्किंग सो वेल, मेरा घर भी चल रहा है माशाल्लाह एंड एवरीथिंग। सो वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फिगर आउट कि एक्चुअली What is रीजन the क्या है, reason behind? व्हाट इज द कॉज एक्चुअली। Yes. yes there are certain things, देखें जब हम ये नॉर्मल मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑल have this corona, कोविड पीरियड भी हमारे पास ट्रीटमेंट था ही नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। In that case, symptomatic. And there is still cerebral pain where, as far as the physical therapy is concerned, that we have to pick up the cause. If we picked Yes, it up, definitely. तो आप उसको फौरन से यानी ठीक कर सकते हैं ना। अदरवाइज तो देखिए, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जी, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपकी नेक पेन है, ठीक है, आपने उसको उसको मेडिसिन दी, एंसर दिया और वो ठीक हो गया फॉर द टाइम बीइंग। हफ्ते बाद वो आपके पास दोबारा आ जाता है क्योंकि आपने उसको प्रॉपर असेस ही नहीं किया, आपने चेक ही नहीं किया कि एक्चुअली तो इसका पोस्चर खराब है, वी नीड टू वर्क ऑन द पोस्चर। अब लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है आपकी लाइफ एंड लिविंग के नाम से बड़ी जबरदस्त चल रही है, वो पे काम है, आपने प्रिकॉशंस पे काम करना है। आप पेशेंट पहले से फिगर आउट करें कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस, फॉर एग्जांपल अब जैसे हम एकेडमिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ अस, तो जो Yes. एकेडमिशियंस हैं दे नो दैट दे हैव टू वर्क ऑन द कंप्यूटर्स, ऑन द Laptops and लैपटॉप फॉर द लॉन्गर आवर्स, वी हैव टू सिट, वी हैव टू वर्क ऑन इट। अब जब हम बैठ जाते हैं, हम फीमेल्स को वी नो दैट इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली we have a type of pear shaped bodies. अब जब हम we will have long hours of sitting on computers and working on that, not only our elbows, our shoulders, but our hips and all that gets bigger in size, or that is all our tummies। आप देखें हमारी tummies जो हैं they are getting bigger, हमारे today. जो abs हैं, हमारे abs जो हैं, this is all because कि हम सारा टाइम बैठे रहते हैं, computers पे काम करते हैं। हमने या तो लेक्चर देना है, that will be of 2 hours and we are standing there, स्टिल स्टैंडिंग ही होती है वो, कोई हम वॉक तो नहीं कर रहे होते ऐसे। अगर Yes, हम उसके definitely. अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर, इफ वी आर वर्किंग, वी आर सिटिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स। So Yes. just because of working on laptops, there are so many things. आपके shoulders fatigue होते हैं, your elbows, your knees, your hips, everything that is getting affected by it. So whenever we make a plan, whenever we are working with the patients, तो हमें वो जो अप्रोच we call it holistic approach, कि आपको Holistic. हर चीज आपको देखनी होती है। जैसे for example, no doubt we have narrowed it down to the neuromuscular physical therapy, musculoskeletal physical therapist, the pediatric physical therapist. We have so many of the specialities in the physical therapy now, but still देखें, एक जो न्यूरो का पेशेंट, सॉरी, जैसे एक न्यूरो का फिजिकल थेरेपिस्ट है, इफ ही इज डीलिंग विद द पेशेंट ऑफ स्ट्रोक, अब वो स्ट्रोक के पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वी नो दैट कि not only working with the neurons, working with the nerves, or along with that the patient has to, or the physical therapist has to work with the muscles as well. तो वो जो Exactly. मस्कुलोस्केलेटल वाला इम्पैक्ट है या वो जो एलिमेंट है, वो भी हमें देखना होता है क्योंकि हमें स्ट्रेंथनिंग्स भी करानी है साथ में। नॉट ओनली वी हैव टू ब्रेक Exactly. द साइनर्जीज, नॉट ओनली वी हैव टू ब्रेक द साइनर्जीज ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट, बट ऑल्सो वी हैव टू गिव हिम स्ट्रेंथ समवेयर। कहीं उसको Yes. स्ट्रेंथ चाहिए, कहीं उसको स्ट्रेचिंग चाहिए, कहीं पे हमने उसको रिलैक्सेशन देनी है, जब भी हम उनकी पूरी वो एनर्जीज ब्रेकआउट कर पाते हैं ना। अदरवाइज तो अगर हम सिर्फ ये Exactly. सोचते रहें कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग्स करते रहना है, और जहाँ पे हमें स्ट्रेंथनिंग चाहिए वहां पे हम स्ट्रेंथनिंग ना दें, जहाँ पे मोटिवेशन चाहिए, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट जो एक बहुत बड़ा रोल हम प्ले कर रहे होते हैं, वो एज ए काउंसलर होता है, वो टू टेल द Exactly. पेशेंट्स how to behave in certain situations and how to deal with the particular things. अब हम being a physical therapist, we are not only the therapist, we are the psychologist and the counselors as well. हमें बहुत ज्यादा Exactly. इसके ऊपर काम करना पड़ता है। So being a physical therapist, you must be a person who's having wonderful communication skills. अब आप बगैर communication skills के साथ एक अच्छा पेशेंट डील नहीं कर सकते। समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी। आप फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ आप रिस्ट पेन है, या जैसे अभी पिछले दिनों आई हैव सीन अ पेशेंट ऑफ डी करवीन्स, वो इट वाज डी करवीन, और Okay. उसमें देखें आप ये जो हमारे गोल्फ प्लेयर्स होते हैं,
ये गोल्फ प्लेयर्स में गोल्फर्स एल्बो तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ये डी कर्विंस इज गेटिंग वेरी कॉमन। मैंने पिछले दिनों में को 2-3 ऐसे पेशेंट्स देखे हैं वर द गोल्फ प्लेयर्स और उनको डी कर्विंस भी है साथ में। तो हमने फिगर आउट करना होता है कि what एक्चुअली is the वेयर द reason? प्रॉब्लम लाइज, यस Yes. वेयर द And I प्रॉब्लम think लाइज एंड देन एंड आई थिंक डॉक्टर मरियम आजकल हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट आर वेरी एजुकेटेड टू, वो खुद से भी रीजंस काफ़ी आइडेंटिफाई कर कर आते हैं एंड दे वांट टू फिगर आउट फ्रॉम द थेरेपिस्ट कि जी इनमें से एक्चुअल मेरे पास क्या है, क्योंकि गूगल करते हैं, गूगल में से डिफरेंट लिस्ट निकल आती हैं, दे नीड टू नो कि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चल रहा है. व्हाट डू यू से अबाउट इट? yes, exactly. They want to know. Yes, they want to know what is happening with them. We will do with them, and what will be the prognosis. They want to know कि हम कितने दिन में ठीक होंगे, हम कैसे ठीक होंगे, अगर हम ये करेंगे तो ये वर्ष तो नहीं हो जाएगा. आपके पास जो एग्जैक्टली. पेशेंट आप आता है ना, he or she is very educated. Sometimes वो यस, anatomy एग्जैक्टली. physio तक पढ़ के भी आए हुए होते हैं आपके पास कि अच्छा एग्जैक्टली. अच्छा ये वाला मसल, अच्छा अच्छा. और कुछ जो ट्रेनर्स के पास से आते हैं तो उनको भी बहुत सारा नॉलेज होता है इसके बारे में. तो हमें नॉट ओनली वी हैव टू बी एविडेंस बेस्ड, हमें ना सिर्फ वो एविडेंस पूरे पढ़ना पड़ता है, हमें उसके साथ साथ जो उनका बैकग्राउंड नॉलेज है, यानी कि अपना हमारा जो एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट जो हमारी एनाटमी है, हमारी फिजियोलॉजी, वो भी हमें रिवाइव करनी पड़ती है. क्योंकि एग्जैक्टली. आपको पता है इन द कम्युनिटी वी आर वर्किंग, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं हमारे पेशेंट्स. और आप इमेजिन करें इन अ सेटअप वेयर आई एम वर्किंग, वहाँ पे हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं जी आप पहले मेरी एक कलीग है उनको ट्रीट करें, इफ शी विल गेट बेटर देन आई विल रेफर पेशेंट्स टू यू. तो वो हमारा टेस्ट भी नाइस. लेते हैं बकायदा, फिर वो हमारा पूरा पूरा वाइवा कंडक्ट करते हैं. तो उनकी कलीग को शी वाज हैविंग सर्वाइकोजेनिक हेडेक ना, तो वी ट्रीटेड हर वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे पास बहुत अच्छे मैनुअल थेरेपिस्ट हैं, तो ही ट्रीटेड हर, और टू डेज में उसने कहा जी आई एम गेटिंग बेटर एंड आई एम परफेक्ट नाउ. तो फिर वो डॉक्टर साहब जो हैं ही इज सेंडिंग अस द पेशेंट्स. एक्चुअली हमारा ये नोट ओनली हमारी एक ज़ाहिर है हमारी एक प्रोफेशनल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी तो होती है, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि हाउ एग्जैक्टली. यू आर वर्किंग बीइंग अ फिजिकल, being a doctor. It's easy to be a doctor, but it's not an easy job to be a physical therapist because you're always in a testing phase. आपको हर वक्त अपना नॉलेज रिवाइव करना पड़ता है. देखें अब हमारे यहाँ पे कितना ट्रेंड है, बहुत सारे हम फॉरेनर्स बुलाते हैं, एजुकेशनिस्ट बुलाते हैं और क्लिनिशियंस बुलाते हैं, सो दैट वी इम्प्रूव आवर क्लिनिकल स्किल्स. Yes, अभी yes, देखें जैसे exactly. हमारा जो रिसर्च वर्क है, इफ यू कंपेयर इट विद द डॉक्टर्स या एमबीबीएस या एमडीज जो हैं, we as a physical therapist are far ahead of them. उनको Yes, बहुत सारी exactly. चीजें पता ही नहीं होती. They don't even know Yes. what is synopsis, what is full thesis, what is article. वो जब मेरे साथ ऐसी, because I do have friends, तो वो जब मेरे से ऐसी discussions करते हैं तो I feel so bad कि यार come on, what are you doing? And we feel proud as physiotherapists. Oh yes. At that time, I always feel proud over it because I'm working on a journal at my college. So it's lovely that people don't know, like the doctors आप जो बैठे होते हैं and you become the leader of them. So Yes. Zahra, it gives you a prestige as well. So Yes. it's a wonderful to be a physical therapist if we Yes, know what we are exactly. doing. Exactly. Okay, ma'am, we have the few questions from the audience, so I want to ask some of them. स्टूडेंट है कोई, वो पूछना चाह रहा है कि हाउ कैन आई मैनेज माई मस्कुलर पेन ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग. लाइक अगर एक सफ़र के दौरान को फिर ही और शी हैज़ टू ट्रेवल अबाउट 2 to 3 hours अ डे, तो वो इस ट्रैवलिंग के दौरान किस तरह अपना पेन को मैनेज कर सकते हैं? डिफरेंट मस्कुलर पेन्स, बॉडी एक्स, बैक एक इस तरह होता है, तो कैसे वो मैनेज कर सकते हैं? ओके अच्छा देखें, अब ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग राइट. हमें फॉर एग्जांपल हमने ट्रैवल करना है, एक तो ये है कि आप अपना पोस्चर जो है उसके ऊपर वर्कआउट करें कि आप अपना पोस्चर प्रॉपर रखें. फॉर एग्जांपल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द बैक एक, तो वो जो हमारे ट्रैवलिंग पिलोज मिलते हैं वो आप जरूर यूज करें. हमारे नेक पिलोज भी अवेलेबल हैं, आपको अगर नेक में पेन है तो आप उसके लिए वो यूज कर सकते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लाइफस्टाइल. ठीक है, ये तो वो काम है जो आप ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो आपको पेन रेमेडीज या पेन में रिलीफ दे सकते हैं. लेकिन द एक्चुअल थिंग इज द बैकग्राउंड, कि आपको अपनी कोर स्ट्रेंथन करनी है, आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है. लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में सिर्फ इतना आपने करना है कि यू ऐड द कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज इन योर लाइफ. यस, दे आर वेरी टफ इन द बिगनिंग, बट अगर आप
थोड़ी सी एफर्ट करें एंड यू स्पेयर हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ एंड इंक्लूडिंग इस हाफ एन आवर में यू कैन इंक्लूड योर वार्म अप पीरियड एंड योर कूल डाउन पीरियड एज वेल। और आप जो मैट एक्सरसाइजेस हम कराते हैं दे आर वेरी सिंपल, उसमें हम वो सिंपल जो ब्रिजिंग्स कराते हैं या SLRs कराते हैं, ये सारी हमारी कोर स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं ना। तो हम अगर स्टार्टिंग अ लिटिल फ्रॉम द कार्डियो और उसके साथ आप रूटीन में एडअप करें कि आप कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें, पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल्स आई डू सजेस्ट कि आप जरूर मैं क्योंकि खुद एक रेगुलर एक्सरसाइजर हूँ, बीच में ड्यू टू द कोविड बहुत सारा जो है वो सेटअप खराब हुआ जस्ट बिकॉज कि आई गॉट कोविड और उसके बाद आई फेल्ट सो वीक। लेकिन देखें उसके बाद मैंने स्टार्टेड वर्किंग अगेन, तो वर्कआउट करने में इनिशियली बहुत आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको टाइम मैनेज नहीं करना था। आप अब देखें you you if you don't care for yourself, how can you give a care to others? Exactly. Fortunately I have been enrolled in a course of life and living. It says patient को क्योर नहीं करना होता, सिर्फ आपने हील करना होता है पेशेंट को, कि आपने नॉट ओनली उसकी फिजिकल एलिमेंट खत्म करनी है, आपने उसकी इमोशनल और जो इनर सेटिस्फेक्शन है उसको भी इम्प्रूव Yes. करना है। फॉर दैट यू योरसेल्फ मस्ट बी गुड इनफ। तो इसके लिए लाइक फॉर द ट्रैवलिंग आपने एक तो रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग है वो, और इसके साथ प्लस आपको एक्सरसाइज या जो स्ट्रेंथनिंग फॉर योर होल बॉडी है दैट इज नेसेसरी। वो आप ज़ाहिर ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से अपना टाइम निकालना पड़ेगा, एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। कोर स्टेबिलिटी का वर्ड हम यूज करते हैं, हम फिजिकल थेरेपिस्ट वी ऑल नो दैट, कि जिसमें सारे आपके मेजर मसल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप दिन में 2 या 4 घंटे भी ट्रैवल करें तो यू विल नॉट हैव एनी पेन्स। Exactly, because we can't control the ergonomics in the different places. हम offices में काम करते हैं, schools में बच्चे या colleges में आते हैं, and we don't follow ergonomics. हमारी society में ergonomics का भी कोई खास concept नहीं है, and this ergonomics is basically the main reason कि हम किस तरह अपने lifestyle को improve कर सकते हैं। मैम मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि लाइक द स्टूडेंट्स हैव द लॉन्ग स्टडी आवर्स, ठीक है, तो हाउ कैन दे ओवरकम देयर शोल्डर एंड बैक पेन? One point was the ओके अच्छा over to you, ma'am. ओके अच्छा देखें, जो लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं उसमें तो आप हमेशा रिकमेंडेशन यही होती है कि आफ्टर हाफ एन आवर यू मस्ट चेंज योर पोस्चर। फॉर एग्जांपल Yes. आप व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो मैं तो यही करती थी, बेड पे बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल तो जाके आप चेयर पे बैठ जाएं, टेबल चेयर पे बैठे हैं तो आप जमीन पे बैठ जाएं, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर यंग, तो यू हैव टू चेंज योर पोस्चर। आप बीच में रिलैक्सेशन पॉइंट्स रखें, ये एक जनरल टिप आप पढ़ होते हैं जो ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होता है, यू मस्ट हैव समथिंग टू ईट एज वेल। मुझे पसंद है, किसी को कुछ और पसंद होगा। अगेन जो हमारा की टू सक्सेस है टू एलिविएट ऑल द पेन्स एंड टू रिमूव ऑल इज योर। अगर आप एक अच्छे नॉर्मल पोस्चर के साथ बैक के साथ बैठे, आप चेयर पे बैठ फॉर एग्जाम्पल, और आपकी जो हील्स हैं या जो आपकी कोई स्टूल रख सकते हैं, ठीक है, सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आए। ठीक है, आप जो टेबल की हाइट है या चेयर की हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल, सो दैट कि आप अगर सिटिंग में ही पढ़े जा रहे हैं, कुछ लोगों को चल चल के पढ़ने की आदत होती है, तो दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। इसमें आपकी एक तो कार्डियो इंप्रूव रहती है और दूसरा ये है कि आपको पोस्चर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। लेकिन अगेन जो मेरी साइकोलॉजी है बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट इज दैट योर जनरल फिटनेस, आपकी अगर जनरल फिटनेस अच्छी है और आप अदर देन योर स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग और अपार्ट फ्रॉम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ड्यूटीज यू आर परफॉर्मिंग, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा पार्ट अपने लिए रखें और उसके अंदर आप एक्सरसाइज को रूटीन में ऐड कर लें। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई प्लान बनाकर दे एक्सरसाइज का तो ही चलेगा, अब तो ऑनलाइन बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा
आपको खुद अंदाजा होता है कि कौन सा एरिया ऑफ माय बॉडी इज वीक, आप उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम कर लें, वॉल प्रेस अप्स कर लें आप। प्लैंक्स तो बड़े कॉमन है, लोगों में बड़े फेमस भी होते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट। मैं बहुत मुश्किल से 1 मिनट पे पहुंचती एंड देन आई गेट बैक व्हेन आई स्टॉप डूइंग इट। तो जो मेन उसका क्रक्स है वो दैट इज कि यू हैव टू मेंटेन योर जनरल फिटनेस इन जनरल। अगर Exactly. आप उसको मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज को मेक योर पार्ट ऑफ लाइफ, तो देन यू कैन रिमूव ऑल दीज थिंग्स। अब अगर आप सिर्फ ये चाहें कि जस्ट ड्यूरिंग द स्टडी आप अपना पोस्चर मेंटेन करके आप वो फटीग को अवॉइड कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको यू हैव Exactly. टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू गेट दैट इंड्योरेंस, यू हैव टू गेट दैट स्ट्रेंथ कि आप इस सारी चीजों को डील कर सके ना। सिर्फ पढ़ने के दौरान में आप पोस्चर चेंज करेंगे तो फॉर द टाइम बीइंग आप यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील बेटर, Exactly. बट ये लॉन्ग रन यानी सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको you have to work Lifestyle out. modification. Yes, you have to work out. Workout, Okay. there is no you can say substitution for the workout. General fitness जिसको हम कहते हैं ना, आपकी general fitness is very Yes. important. Exactly. Okay, ma'am, there is one more question. Like, how can we reduce the knee pain instantly? Like physical therapy का लोगों का concept होता है कि हमें एक दिन में आराम नहीं आने वाला. It would be a prolonged session. So how can we reduce the knee pain instantly? Do we have Okay, to take the अच्छा muscle देखिए, relaxants or not? वेल अब तो वी नो दैट हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल टेक्निक्स हैं, जो ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपिस्ट हैं, दे नो इट We के can वी try. डू हैव द टेक्निक्स कि हम उसको Yes. इंस्टेंट रिलीव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। अब फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रोमलेशिया पटल्ली है किसी को, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको हम एक सेशन देंगे और वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो वॉक Exactly. करेगा उसको उसको वो पेन इंक्रीज होना ही है। तो फॉर दैट हम यूजुअली पेशेंट्स के साथ क्या, यानी वो थोड़ा हमें भी ट्रिकी होना पड़ता है ना बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट। तो हम Exactly. जो मोबिलाइजेशंस कराते हैं या मोबिलाइजेशंस विद मूवमेंट्स कराते हैं या जो मूलिगन है, ये Yes. सारी वो टेक्निक्स हैं जो इंस्टेंट रिलीफ दे Instant देती हैं relief. आपके पेशेंट्स को। So, लेकिन अगेन समटाइम्स फॉर द प्लेसिबो वी आस्क द पेशेंट्स टू टेक दिस मेडिसिन एंड कम टू अस एंड देन विल गिव देम द ट्रीटमेंट, सो दैट उनके माइंड में ये भी होता है, जाहिर है आपको पता है ये जो DOMS का mental कंसेप्ट self. है, डॉम तो हमारा डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ये समटाइम्स आप बिल्कुल स्लाइट भी जो हमारी हमारी पॉपुलेशन है जिसको हम डील कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। हम एक तो अपनी Exactly. डाइट ठीक नहीं रखते, हम अगर डाइट अच्छी है तो हमने एक्सरसाइज नहीं करनी होती, तो ऐसे पेशेंट्स को डील करना बहुत ट्रिकी होता है। फिर Exactly. उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे से, ठीक है। और Exactly. यूजुअली दे वांट, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कई चीजें हम जस्ट बाय मोबिलाइजेशन हम हल कर सकते हैं। वो Exactly. इन अ सिंगल सेशन आपकी पेन जो है ना वो इंस्टेंट रिलीफ होता है आपको। Deeper. लेकिन Exactly. आपका पेशेंट जो है ना वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यू मस्ट स्पेंड हाफ एन आवर विद द पेशेंट सो दैट वो ठीक होंगे, अदरवाइज वो ठीक नहीं हो सकते। तो उनको जस्ट टू गिव देम प्लेसिबो इफेक्ट हम फिर वो सारी मोडालिटीज यूज करते हैं सो दैट हमारा पेशेंट जो है वो इमोशनली साइकोलॉजिकली भी सेटिस्फाइड हो। बट फॉर द नी पेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोबिलाइजेशन जो है वो दे आर द की टू सक्सेस एक्चुअली। अगर आपको मोबिलाइजेशन करनी आती हैं ग्रेड 1 2 3 4 मिडलैंड या कैल्टनबॉर्न या मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट्स, तो दे आर समथिंग यू कैन से दैट द होली ट्रीटमेंट्स इन द फिजिकल थेरेपी। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हम ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल रूट कॉज होता है उसको आइडेंटिफाई करना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट टू डिक्रीज द पेन। हमारे पास मोस्टली पॉपुलेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि इस डॉक्टर ने या इस बंदे ने मेरी इंस्टेंट पेन रिलीफ कर दी, ही और शी इज़ वेरी गुड, बट इन एक्चुअल आपकी रीज़न आइडेंटिफाई नहीं हो, वो पेन रिकरेंट कर रही होती है। सो हम अपनी ऑडियंस को आज यही बता रहे हैं दैट यू हैव टू ट्रीट द रीज़न, नॉट द पेन। Moving on, ma'am, we have a question like, what is the role of yoga in the physical fitness in relaxation, and how many sessions should one take? Okay. As far as yoga is concerned, there are so many of the postures and so many of the concepts about yoga. I don't have a very good background about the yoga, but I just know it कि ये for the relaxation it's 100% perfect। ये बहुत जबरदस्त relaxation techniques होती हैं इनकी और बहुत डिफरेंट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई नो वन गर्ल जो कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस में है,
तो आपका जो मेंटल पीस है या जो आपकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग करता है ये जो योगा है, दैट इज वंडरफुल. I don't know Exactly. how much it is recommended for the strengthening, but for relaxation and for the stretchings it is recommended. ये it's a wonderful thing for your mental health actually. हमें पता है कि जब हम physical activity करते हैं तो हमारे जो endorphins release होते हैं, it's the game of hormones. वो Yes, आपके exactly. हार्मोन्स को बहुत अच्छा सेटल करता है. बॉडी शेपिंग बहुत अच्छी, यानी उसमें उसका बहुत रोल है. बट एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन कि आपको कितना करना चाहिए, यानी किस लेवल तक करना चाहिए, that's not my specialty actually, so I'll not comment on it more than this. That it is perfectly all right to go for the yoga. It is wonderful for improving your body shape, your body image, and for the relaxation. Yes. That's what All the I'm sure physical and the mental relaxation, all the things, I think. Yeah. Okay. Last but not the least, I have a question like what strategies would you suggest to imply treat the reason, not the pain in our systems, in our physiotherapy systems or in any system? Okay. The first and the foremost thing when we say that कि treat the reason, उसमें आपकी assessment should be very strong. आपने patient जब आपके पास when the patient comes to you, हम देखें जब बहुत ज्यादा practice में होते हैं तो कई बार patient की गेट ही ऐसी होती है कि हम उसी से अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि what could Exactly. be the reason, right? If you know Okay. what is the reason, it is easy for us as a physical therapist to treat it. For example, आप देखें जैसे मैंने शोल्डर की एग्जांपल दी कि आपके पास एक पेशेंट आता है शोल्डर पेन के साथ, आप बस उसको आते हैं, उसको मोबिलाइजेशंस करा देते हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग्स करा देते हैं, एंड यू डू नॉट लुक व्हाट इज द एक्चुअल रीजन. अब जो सेशंस Exactly. हम 10 या 15 सेशंस देने के बाद पेशेंट को ठीक करेंगे, अगर हम उसका रूट कॉज पिक कर लें कि ये जी इसको कोई टीयर है फॉर एग्जांपल, या इसको टेंडिनाइटिस है, या इनको बर्साइटिस है, ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक का जो प्रोग्नोसिस है दैट इज डिफरेंट. जब हमें ये पता Exactly. हो कि हम ये रीजन ट्रीट, यानी कि ये रीजन है जिसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आसान हो जाता है. और व्हाट यू से आपकी जो मार्केटिंग है दैट गोज वेल एज वेल कि जी हम इस Exactly. थेरेपिस्ट के पास गए थे और ही और शी ट्रीटेड मी सो वेल कि मैं 2 दिन में ठीक हो गया, मैं 3 दिन में ठीक हो गया. और जो मैनुअल थेरेपिस्ट हैं, लिटरली द वन हु नोज हाउ टू डील और हाउ टू वर्क विद द मैनुअल थेरेपी, कि आपने कौन से मसल्स को कैसे वर्कआउट करना है, तो यू विल सी के दे आर शोइंग और दे आर गिविंग अस वंडरफुल रिजल्ट्स. Exactly. हमारे जो मैक्सिमम पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, देयर वाज अ टाइम कि हमने बिल्कुल ही जो मोडालिटीज है उनको ऑब्सोलीट कर दिया था, हम उनको बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे. बट इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर सो मेनी कंडीशंस जिसके अंदर हमारी मोडालिटीज दे आर प्लेइंग अ वंडरफुल रोल. जो फॉर एग्जांपल आइस थेरेपी है, फॉर एग्जांपल हम जो ये मॉइस्ट हीट यूज करते हैं, दे हैव देयर ओन इफेक्ट्स. उसके साथ जब आप मैनुअल थेरेपी परफॉर्म करते हैं, मैनुअल थेरेपी में देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जो हम कर रहे होते हैं, जिसको आम जुबान में लोग कहते हैं जी ये कड़ाके निकालते हैं. वो एक्चुअली हमारी मैनिपुलेशंस जो हैं, they are Yes. wonderful. A few days back I myself was having pain in my wrist, और मैंने इसको just वही जो हम मैनिपुलेशंस करते हैं, wrist manipulations, और with the one session it was gone. So हमारे Very अपने पर्सनल wonderful. एक्सपीरियंसेस भी जो हैं वो दे प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग, इन मैनिपुलेटिंग, इन मोबिलाइजिंग द पेशेंट्स कि हमने किस तरह से उनको ट्रीट करना है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द असेसमेंट, कि आप कौन सी Yes, स्ट्रैटेजीज यूज exactly. कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट. हम यूजुअली वो सोप मॉडल जो है वो फॉलो करते हैं फॉर Exactly. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेशेंट असेसमेंट जो हम करते हैं उसमें. अच्छा, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फिजिकल थेरेपिस्ट which says Exactly. exactly opposite to what we are talking about, that treat the cause, not the. So Australian physical therapy are on to alleviate or to remove the symptoms while the cause is still there. दे सेड के आप जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, आप जो है वो कॉज को छोड़ दें और जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव कर दें आप. बहरहाल जो मोर क्लासिकल, मोर ट्रेडिशनल एंड मोर एविडेंस है वो ये कहता है कि यू मस्ट हैव टू treat the reasons behind the pain, so you'll get the better Exactly. results. So the proper assessment, diagnosis, and identifying the reasons are the basically the crucial steps in treating a patient. हम लोगों को अब अपना concept एक change करना पड़ेगा. Like
instant relief. We need to know the diagnosis, we need to know the reasons. So ma'am, do you think the orthopedics or the other doctors don't refer for the obvious problems like sciatica, which cannot be treated without mobilizations, and why don't they refer the patients to us? इसमें बट आई सपोज हम फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं उनका भी बहुत बड़ा कसूर है. दे डोंट गो टू देम, दे डोंट टॉक टू देम. When you go to them with the sound basics and with the sound basic knowledge, they always acknowledge you, they always refer you patient. Yes, there are certain type of racist type of the doctors जो कि नहीं आपको करते. Otherwise, as far as my experience is concerned, मैंने like we in this hospital, I have joined this organization in August. There was a physical therapist already there, but there was a zero patient referral to him. But when I joined it, I met there the orthopedician, I met the neurologist there, I met even that gynecologist. They all are referring patients to us. हमारा problem ये है कि हमारे जो doctors हैं, if they don't take offense, उनको खुद नहीं पता कि उनको कौन सा पेशेंट रेफर करना है टुवर्ड्स फिजिकल थेरेपिस्ट. हमें उनको बताना पड़ता है. जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल कोट की कि वो मुझे कहता है कि ये मेरा पेशेंट जो है ना, ये ठीक करें, अगर आप ठीक कर देंगे आई विल रेफर यू द पेशेंट्स. He sent that patient to us. हमने उसको असेस किया. वो फॉर्चुनेटली हमारा ही पेशेंट था. लाइक वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक के साथ था. इट्स अ फॉर्च्यून ना. हो सकता है वो किसी और वजह से उसको हेडेक हो रहा था, तो ज़ाहिर है वी कैन नॉट ट्रीट दैट. तो हम जब डिस्कस करते हैं उनके साथ, हम उनको बताते हैं कि ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. देखें फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत सारे हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो दे डोंट नो कि हमने टीकेआर के बाद या टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को या कैसे लेके चलना है. वो हमें ज़ाहिर डिस्कस करना पड़ता है ऑर्थोपेडिशियन के साथ, सर्जन के साथ, कि उसने विच अप्रोच दैट पर्सन हैज यूज्ड. तो जब हमें उसके अप्रोच का पता होता है तभी हम उसका रिहैब प्लान बना सकते हैं ना. तो जब हमारे पास बेसिक नॉलेज ही नहीं होता, हम उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, हम उन्हें बता नहीं पाते. जब आप उनसे बात करें और 2-3 टर्म्स ऐसी बोलें आप जो कि रिलेटेड होती हैं रिगार्डिंग दैट, हमें असल में उनको सिर्फ ये अश्योर कराना होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू योर पेशेंट, वी आर गिविंग योर पेशेंट अ डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन. आपकी मेडिसिन के साथ जो भी आप दे रहे हैं अपने पेशेंट को, हमने उसको नहीं छेड़ना, हम उसको कुछ नहीं करने वाले. ठीक है, हम अपना काम करेंगे. हमें वो उनको बताना पड़ता है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है. वंस दे गेट इट, देयर आर सर्टेन पीपल जो कभी समझ नहीं सकते, हम उनका कुछ नहीं कर सकते. बट वी हैव टू गो फॉर द पीपल जो कि इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं. और पर्टिकुलरली आप देखेंगे जो डॉक्टर्स हैं, जो एमडीज और वो जिन्होंने बाहर से पढ़ा हुआ है, जिनका एक्सपोजर अच्छा है, वो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करते. वो हमेशा आपको एक्नॉलेज करते हैं, वो हमेशा आपको वैल्यू करते हैं. व्हेन आई वाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो हमारे पास वहाँ पे 2 डॉक्टर्स होते थे. एक ऑर्थोपेडिशियन थे, ही वाज अ सर्जन, और वो ही वाज वर्किंग इन अमेरिका, और उधर से वो आए थे वापस. तो आप इमेजिन करें, वो इतनी वैल्यू करते थे कि उनके जो एमओज और एचओज होते थे, उनको बोलते थे कि आपने फिजिकल थेरेपिस्ट को कुछ नहीं कहना, ये मेरे पेशेंट को चलाएंगे, ये मेरे पेशेंट को ठीक करेंगे. फिर अगेन वहाँ पे एक न्यूनेटल आईसीयू में होते थे डॉक्टर साहब. वो उनका भी एक्सपोजर अच्छा था, वो भी बाहर उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम किया हुआ था. तो उनका आइडियोलॉजी फर्क होती है. यस, यहाँ पे हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो अगेन आई वाज टेलिंग यू कि बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, इट्स इजी टू बी अ डॉक्टर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ फिजिकल थेरेपिस्ट. ये जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स है ना, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये हमें बहुत अच्छी चाहिए होती हैं. अदरवाइज हम जो है ना, बस वो फिर पीछे ही रहते हैं. हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा नॉलेज और द वे हाउ वी डील द पेशेंट, ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो दिलाती है. अदरवाइज आपको पता ही है टाइटल की दौड़ तो Exactly. Exactly, ma'am. You very well said that we are not only prescribing the medications, we are giving a different plan of care. Having said that, I really want to thank you for taking us the time for us. And you were stuck in the traffic, but you continued the session. I am very obliged that you have attended the session and आपने हमारी ऑडियंस को इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया. एट द एंड अगर आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहें.
this opportunity to be here. Actually, but it was very unfortunate. Usually, मैं बहुत पहले घर पहुंच जाती हूँ, लेकिन today it was a bad day for the traffic. But for the audience, my message is, if you are student, if you are young, if you are old, if you are a geriatric population, like either you are young or you are an old person, you must have to add some type of exercise in your life. It could be according to your choice. It could be aerobics, it could be strengthening exercises. लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए for your well-being. Today is the time where mental health, हम बहुत बात करते हैं mental health की. तो आपकी जो mental health है और जो आपकी physical health है, they both are related. If you are not physically okay, हमें पता है कि chronic conditions जो हैं, जो chronic pains and aches के साथ होते हैं patient, वो psychologically पे depress होते हैं, वो psychologically hit होते हैं. जो psychological patients होते हैं, वो somatically hit होते हैं, उनको फिर physical symptoms आना शुरू हो जाते हैं. तो आप whatever you are doing in your life, do it for yourself, but must have an hour or so for yourself. ठीक है, आपने अपने लिए पूरे देखें, पूरे वीक में you can have only 3 days a week. 3 days a week आप एक्सरसाइज करें, लेकिन आप जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी जरूर करें जो आपकी जनरल फिटनेस को हिट कर रही हो, जो आपको जनरली फिट कर रही हो. बिकॉज बीइंग फीमेल, आई नो आई एम अ मदर. आप अगर इफ यू आर अ मेल, यू नो दैट यू कुड बी द फादर लेटर ऑन. अगर आप अभी नहीं है, तो हम सब ने वो एक न्यू जनरेशन, एक न्यू वो हमारी जो रिप्रोडक्शन है, उसको हमने रेज करना है. अपनी नई जो आने वाली नस्ल है, उसके लिए हमें खुद को स्ट्रांग होना चाहिए. कई बार फिटनेस जो है वो समथिंग कि आप स्ट्रांग हो, आपको अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करनी पड़े, या आपको अपने कोई रोल मॉडल देना हो कि यार with the problems, with the things, with the responsibility, you should be strong enough, both mentally and physically. So the message of today is you must have some kind of physical activity in your life. If you like cycling, go for it. If you like running, go for it. If you like swimming, go for it. Whatever the choice is, but you must have something that makes you physically relaxing. जब आप physically कोई ना कोई activity करते हैं, तो आप mentally भी relax होते हैं. मुझे पहले भी एक बात की, the whole life is surrounded by the hormones of life. अब hormones of happiness, we know that these are oxytocin, these are endorphins, dopamines. ये सारे वो हार्मोन है जो हमारे लिए हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं. तो हमें जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके साथ एंडोर्फिन्स आर रिलेटेड. वी नो दैट बीटा कैफीन एंड एंडोर्फिन्स, दे आर वंडरफुल हार्मोन्स जो आपको इरिटेट रखते हैं, आपकी एनर्जी हाई रखते हैं, और ये तभी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं व्हेन यू गो फॉर द फिजिकल एक्टिविटी. You must have something that engage you physically, whether your kids, whether friends, whether anybody, or alone. You must have something that makes you physically fit. Thank you. So we had a very wonderful, informative session with Dr. Maryam Shabir. Thank you so much, ma'am, for taking the time for us. And I hope हमारी ऑडियंस ने भी आज बहुत कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन ली होगी, और they would get to the point that treat the reason, not the pain, is basically the key for a healthy lifestyle. So I really thank you, Dr. Maryam Shabir, for joining us in this hour. So thank you very much. Signing off. Thank you. So much. Thank you. Bye bye. Take care.